آپ نیشنل ہیروز کو ان اعزازات سے نوازتے ہیں، یہ ایک رینک کے ساتھ ایک سیریمونیل ٹائٹل بھی ہے، تو یہ آیا ان کے ساتھ تاحیات رہنا چاہیے۔ کہاں تک یہ 243 کا سوال ہے، اگر 243 کا نقصان سویلین سپریمیسی کو ہو رہا ہوتا، جمہوریت کو ہو رہا ہوتا، تو میں خود مخالفت کر رہا ہوتا۔ جو فیصلے حکومت نے لیے جنگ جیتنے کے بعد، جو رسپیکٹ پاکستان کو ملا ہے، اب وہ آئینی اور قانونی کور دیا جا رہا ہے اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کھل کے حمایت کر رہی ہے۔ ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن، میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان۔ ویورز، اس وقت اگر دیکھا جائے جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں ہم آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ آج کیبنٹ کا جو ہے وہ ایک سیشن ہوا جس کو وزیر اعظم نے جو زوم لنک ہے اس کے ذریعے انہوں نے چیئر کیا۔ باکو میں وزیر اعظم جو ہیں وہ موجود تھے، وہاں سے انہوں نے چیئر کیا۔ وہاں سے کیبنٹ سیشن سے اپروول کے بعد جو 27ویں آئینی ترمیم کا بل ہے اس کو سینٹ میں جو ہے وہ ٹیبل کیا گیا۔ لا منسٹر اعظم نذیر طاہر صاحب نے اس کو سینٹ میں ٹیبل کیا اور وہاں سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو دونوں ہاؤسز نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں آن لا اینڈ جسٹس، اس میں اس کو بھیجا جائے تاکہ اس پہ جو ہے وہ ایک ہولسم ڈبیٹ جو ہے وہ ہو سکے۔ یہاں پہ اگر اس وقت بات کریں تو جو آج کا جو سیشن تھا اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کی نامینیشن، ان کی اٹینڈنس جو ہے وہاں پر جو ہے وہ موجود تھی، اپنے ان کے نامنیز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ کامران مرتضیٰ صاحب اور عالیہ کامران صاحبہ جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام فضل سے ہے، انہوں نے بائیکاٹ کیا اور انہوں نے واک آؤٹ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس جو ترمیم ہے، جو یہ 27th امینڈمنٹ، اس میں جو چیزیں جو اس کے خد و خال ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو ہم نے نکلوا دی تھیں ان کو دوبارہ اس میں انکلوڈ کر دیا ہے، تو احتجاج کے طور پہ انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ اب یہ سیشن جو ہے وہ کل دوبارہ ریکنوین کرے گا، یعنی سنڈے کو جو ہے وہ ریکنوین کرے گا، اس پہ جو ہے وہ ڈیلیبریشنز ہوں گی، اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس ڈیلیبریشن پروسیس میں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ نمبر گیمز کی اگر بات کی جائے تو نمبر گیمز کے اعتبار سے حکومت جو ہے وہ اس وقت لگتا ہے کہ اٹس ان اے کمفرٹیبل پوزیشن کہ وہ یہ جو ترمیم ہے دونوں ہاؤسز سے وہ پاس کروا لے گی، بٹ آف کورس کنسنسس از دا نیڈ آف دی آر۔ کنسنسس بہت جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ایک ہم آہنگی جو ہے وہ نظر آئے۔ پولیٹیکل پولرائزیشن کے اس ماحول میں جو ہے وہ ایک ہم آہنگی نظر آئے اس ترمیم کے حوالے سے۔ تو لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ کل بالخصوص جو ہے یہ ڈیلیبریشنز کس نہج پہ جو ہے وہ جاتی ہیں، کیونکہ کل ہم نے آپ کو جو کل گزر گئی ہے، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے آرٹیکل 243 کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا گو ہیڈ گرین سگنل دے دیا ہے، اور ابھی ہم نے ابتدائی میں بھی آپ کو دکھایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر مجھے لگتا کہ اس سویلین سپریمیسی کو جو ہے وہ کوئی خدشہ لاحق تھا تو میں اسے خود ہی اپروو نہیں کرتا، لیکن ان کے کچھ خدشات جو ہیں وہ اس ترمیم کا جو کانٹورز ہیں ان کے حوالے سے ضرور موجود ہیں، جو کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بھی جس کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک ججز کی جو ان کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے، اس پہ جہاں سے جج جا رہا ہے، جس عدالت سے جا رہا ہے اور جس عدالت میں جا رہا ہے، ان کو اس کمیشن میں جو ہے اس میں ضرور جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بیکاز آپ کو پتہ ہے ایک تسلسل جو ہے وہ گنا جا رہا ہے 18ویں ترمیم کا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان آنسرڈ رہ گئی تھیں یا ان ایڈریسڈ رادر رہ گئی تھیں 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ، اور تب سے لے کے اب تک وہ ان ایڈریسڈ ہیں، تو ان پہ بھی جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ تو کافی اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن این ایف سی کے حوالے سے یا جو صوبہ خود مختاری ہے اس کے حوالے سے وہ یا پیپلز پارٹی بج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن کس نہج پہ چیزیں جا رہی ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے، کل اس پر ہم ڈسکشن کریں گے، اس ترمیم کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں۔ دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اس وقت کیا پروڈیوسر صاحب ہمارے ساتھ اظہر صدیق صاحب موجود ہیں یا ابھی ہمیں وہ جوائن کریں گے؟ پروڈیوسر صاحب کیا اظہر صدیق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں؟ ابھی جوائن کریں گے، کچھ ہی دیر میں کریں گے۔ علی گوہر بلوچ صاحب سے شروع کرتی ہوں۔ علی بلوچ صاحب یہ بتائیے کہ بڑی ایک اچھی چیز ہے
कि दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस, लेकिन फिर भी ये जो डायलॉग प्रोसेस है, डिलिब्रेशन का प्रोसेस है दोनों हाउसेज में, उसमें जो है उन्होंने ये कहा है कि जी हम शामिल होंगे। हैविंग सेड दैट, आपके लिए, हुकूमत के लिए एक बड़ा ऐसा मौका है कि जहां आप रिप्रोचमा की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रोचमा की बात करते हैं, तो वहां आप उनको कम से कम ये स्पेस जो है वो मुहैया करें कि जिसमें वो ये फील करें कि हुकूमत इज़ एक्सटेंडिंग एन ऑलिव ब्रांच, ताकि आगे की चीज़ें हैं वो बेहतर हो सकें, जिसमें जो उनकी सबसे बड़ी इस वक्त डिमांड है और जो कि बहुत जस्टिफाइड डिमांड है कि आप नोटिफिकेशन करें उनके हाउसेज में, दोनों हाउसेज में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसमें दोनों हाउसेज में जो है वो नोटिफिकेशन करें। तो आपके लिए बड़ा एक अच्छा जो है वो मौका है कि आप इसका फायदा उठाएं और जो पॉलिटिकल आप चाहते हैं कि एक पोलराइजेशन से निकला जाए, उससे निकलने का एक बहुत अच्छा जो है वो आपको मौका फराहम किया जा रहा है। टेक एडवांटेज ऑफ इट। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो भी एक आईनी प्रोसीजर है और उसमें बिल्कुल वो होना चाहिए और उसका प्रोसीजर बिल्कुल चल रहा है और आप बहुत जल्द देखेंगी कि अपोजिशन लीडर का और वो स्पीकर साहब जो है वो फाइल करेंगे नोटिफिकेशन। साथ ही साथ में ये जी आप, लेकिन अली गौर साहब, ये जो मौका है जिस पे इस वक्त आपको अगर नंबर गेम्स की बात करें तो यू कैन सेल थ्रू, उसमें कोई लग नहीं रहा कि हुकूमत को इसको कोई प्रॉब्लम है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको इसलिए उनकी ज़रूरत है कि शायद उन्होंने नंबर्स में कहीं आपको सपोर्ट करना है, बट जो पॉलिटिकल कंसेंसस की बात की जा रही है या ये अगर बात की जाए कि इस पे एक होलसम डिबेट हुई, पॉलिटिकल कंसेंसस हुआ, उसके बाद या नहीं भी हुआ, एवरीवन गॉट टू से व्हाटएवर दे वांटेड टू से, तो ये एक हम आंगी क्रिएट करने का एक बड़ा अच्छा मौका है। तो बजाय इसके कि ये टाइम गुजर जाए उसके बाद आप करें, आप अभी कर दें। नहीं, देखें, गवर्नमेंट की तरफ से तो हमेशा वेलकम किया गया। आपको बिल्कुल याद होगा कि जब इन्होंने आकर मीडिया टॉक्स की थी आज से 1 साल 1.5 साल पहले कि भाई हम मुज़ाकरात चाहते हैं, तो हमने तो उस वक्त भी दरवाजे खोले थे और टेबल पे ला के इनके कहने पे बिठाया था। लेकिन आपको पता है कि मुज़ाकरात में ये जब उठ के चले गए, बाइकआउट करके चले गए, इन्होंने कहा जी कि हमारा तो एक ही एजेंडा है कि वो जनाब बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, हालांकि वो केसेस जो है वो अदालतों के अंदर है। दूसरी बात ये है कि उसके बाद फिर आपने देखा किस तरह से ये इस्लामाबाद के ऊपर बार बार हमला आवर होते रहे और जो पिछली 26वीं तरमीम हुई थी उसमें भी आपने इनका रवैया देखा था कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ राब्ते में थे। उनके जरिए जब इनसे बातचीत की गई उस वक्त तो इन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट्स जो थी वो उसमें तब्दीली करवाई मौलाना फजलुर रहमान साहब के थ्रू, और एंड पे उनको भी ये चकमा दे के उठकर चले गए। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसके बाद से पुलों तले काफी पानी जो है वो गुजर चुका है, एंड मेरा ख्याल है कि अब हमें, अगर हम पीछे की तरफ ही देखते रहे तो वो ड्राइवर जो रेयर व्यू मिरर में ही देखता रहता है वो जरूर किसी एक्सीडेंट में जो है ना वो मुब्तला हो जाता है। सो आई थिंक इट्स बेटर कि हम वी शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग। आगे अगर हम चल रहे हैं तो ठीक है, वो उनकी चीजें थी, उस पर हमने भी आप मुतअद्दिद दफा प्रोग्राम्स में आप आए और हमने उसको जो है वो इंडोर्स किया कि आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है, मतलब ये जो बॉयकॉट की बात थी उनकी तरफ से जो है, बट हैविंग सेड दैट अब तो चीजें आगे बढ़नी चाहिए ना, आप कर दें इस वक्त उनकी नोटिफिकेशन कर दें, इसमें तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है, नोटिफिकेशन बिल्कुल हो जाएगा और मेरा ख्याल है कि अब जाहिर है कि वो स्पीकर साहब ने करना है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मतलब है कि कितने दिनों में होगा, लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि जो अनकरीब आप इस चीज को देखेंगे कि वो स्पीकर साहब की तरफ से इस चीज का इनिशिएटिव लिया जाएगा और वो अनकरीब जो है वो इसका जो है वो नोटिफिकेशन कर देंगे। दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि इनको उस चीज में लिया जाए, तो वो उसके लिए भी बड़ी क्लियर बात है कि उसमें हमारी तरफ से तो पूरी ऑफर है, ये आए आकर उस सारे प्रोसीजर में हिस्सा लें, असेंबली के दरवाजे खुले हैं, इनको किसने रोका है कि ये उस चीज में हिस्सा ना लें, और ये उसमें आए, ये पूरा अपना किरदार अदा करें और साथ ही साथ जो है ये बाइकआउट करने की बजाय हम तो इनको दावत दे रहे हैं कि ये उस सारे प्रोसीजर के अंदर आए
اور یہ بالکل اس میں ان کو چاہیے کہ یہ ساری ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ جے یو ایف اے کے ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ نہیں ہے وہاں پہ. آبویسلی انہوں نے جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جو ہے انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ استعفے دے دیے ہوئے ہیں, اور اسی سے جڑا ہوا ہے یہ جو نامنیشن ہے یا جو یہ نوٹیفیکیشن ہے اسی سے جڑی ہوئی ہے ساری چیزیں, ان کی اٹینڈنس بھی. تو کیا اچھا ہوتا کہ یہ بھی جو ہے وہ اس پروسیس کا حصہ ہوتے. آج صدیق صاحب نے بھی جوائن کر لیے, میں ان کی طرف چلتی ہوں. آج صدیق صاحب, جہاں تک حکومت کی بات ہے آپ نے موقف سن ہی لیا ہے میرا, جو ہم بات علی صاحب سے کر رہے تھے, بٹ کمنگ آن ٹو یو, کچھ دیر پہلے آپ کے جو انکارسریٹڈ لیڈرز ہیں جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, یاسمین راشد صاحبہ ہیں, اور لوگ آپ کے ہیں, محمود الرشید صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ٹیمپریچر کو نیچے لانا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ کچھ چیزیں اپنی بہتری کی طرف جو ہے وہ لے کر جانی چاہیے. پھر ابھی کچھ دن پہلے بھی آپ کے, چاہے ان کو فارمر پارٹی لیڈرز کہیں, جو بھی آپ انہیں کہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, منیب مفتی صاحب ہیں, اس کے بعد عمران اسماعیل صاحب ہیں, ان کا بھی جو ہے وہ یہی پوائنٹ آف ویو تھا جب وہ ملنے گئے شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے, اپنے لیے راستہ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے. جیسے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نمبر گیمز میں ڈیو ٹو واٹ ایور ریزنز اس وقت حکومت جو ہے وہ ایک بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. ڈیو ٹو واٹ ایور ریزنز اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس پہ مجھے پتا ہے کہیں گے کہ آپ کی سیٹس کا جو مسئلہ چل رہا ہے, بٹ اس وقت دیر ان اے کمفرٹیبل پوزیشن. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ کو بھی, آپ کے جو اسٹالورٹس بھی جو ایڈوائز کر رہے ہیں ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے, آپ کے لیے بھی ایک ریپروچما کا جو ہے وہ آپشن نکلا ہے, اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ریپروچما کا ایک آپشن نکلا ہے, تو یو شوڈ اویل اٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی امینڈمنٹ ہے یا اس کو جو 18 امینڈمنٹ میں جو چیزیں بدلنے کی بات ہے, یہ ایک بانی چیئرمین کی بھی بڑی لانگ سٹینڈنگ جو ہے ڈیمانڈ تھی, شروع سے وہ یہ بات کرتے تھے کہ اس میں بہت کچھ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ. بالکل ایسا نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں پروسیس کا حصہ رہا, میں نے چیلنج کیا. صرف ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے علاوہ تمام کی تمام ترامیم نگیٹ ہیں اس سے. ریممبر اٹ. ابھی آپ نے سن ہی لیا علی گور صاحب کو, یعنی آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بھیا جس ترمیم پیش کر رہی تھی اس سے پہلے آپ اپوزیشن لیڈر تعینات کرتے, سینٹ میں یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرتے. لیکن اصل میں عادت ہے آپ کو بارگن کرنے کی, ان کو بیوقوف بنانے کی, نظام کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ تو ذہن میں رکھ لیں, یہ بالکل 18 میں چیلنج کر رہا ہوں اس حوالے سے, ماں سوائے ایک ایشو کے علاوہ کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر چلے میں اس موقع کے لیے ذرا بڑا ایک جو بنیادی طور پر سمجھنا نا آپ نے, اس میں وکلا برادری بھی بڑی کلیئر ہے. ہم اس کو ایجوکیشن کی طرف بھی جائیں گے اور خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے, اور نہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ بیٹھے گی. وفاقی عدالت بنی, سب کچھ خالی صفا, ماضی کے فیصلے کیے, رہ کے بس ہلچل کا فسادہ. صدر وزیر اعظم سب کے لیے رعایت, آئین کی عزت پر دکھاوا بن گئی بہانہ. یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ جو 7 ججوں یا 9 ججوں پہ ہوگی, وہ پاکستانی عدلیہ کے سپریم کورٹ کی تاریخ کو روند کے رکھ دیا, اور ان پہ پابندی نہیں ہے. وہ نہیں مانے گی کسی فیصلے کو. یہ آرٹیکل 189(2) کے اندر, یہ کس نے کہا تھا یہ 18ویں ترمیم میں یہ لکھا ہوا ہے؟ بالکل نہیں لکھا ہوا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر آپ نے استثنا صدر کو تاحیات دینے کی باتیں کر رہے ہیں, اور چلیں ٹھیک ہے, چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھی دینے کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی نہیں تھا 18ویں ترمیم کے اندر, اور یہ نہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے آئین کے اندر. اور وزیر اعظم صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں, یعنی ایک وزیر اعظم آئے ملک کی تباہی و بربادی کرے, اور یعنی عمران خان ہی مقدمے کے لیے آ گیا. اب دیکھا کہ وزیر اعظم کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, یعنی اس کا تو کوئی نہیں ہے. ہم آتے ہیں, ہم بیٹھ کر لے کر چلتے ہیں ان باتوں کو. جتنی کی جتنی ترامیم ہے نا, وہ سارے آپ چاہے اپنا کانسٹیٹیوشن کورٹ کی لے لیں, ججز ٹرانسفر کی لے لیں, اور ایک بڑی انوکھی ترمیم ہے, وہ بڑی کمال کی ترمیم ہے. وہ 26ویں ترمیم کے وقت ہوتا نا, تو اب تک یعنی مثال کے طور پر 3 سینئر ججوں میں سے چیف جسٹس لگایا جائے گا. اگر وہ چیف جسٹس انکار کر دے تو وہ باقی کے باقی بھی ریٹائر ہو جائیں گے. اور اسی طرح ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں اگر جج انکار کر دے تو وہ بھی ریٹائر ہو جائے گا. عدلیہ کی آزادی تو تباہ و برباد. یعنی اس میں صرف ایک فوکس ہے کہ آپ نے عدلیہ کو یعنی ہائی کورٹ کو تحصیل کورٹ. یہ قطع کلامی کی معافی, ایجیٹیشن آپ کا حق ہے. آپ اگر کسی چیز پہ جو ہے وہ آپ اس سے متفق نہیں ہیں, obviously ایک پرامن احتجاج بھی آپ کا حق ہے, نو ڈینائنگ دیٹ. ابھی آپ جس طرح جو آپ بات کر رہے ہیں
कि वकला बरादरी भी इसको चैलेंज करेगी। आपको याद है कि 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पर भी इसी तरह की बातें हुई थी, येट जिस वक्त टाइम आया तो उस वक्त कोई जो है वो एहतजाज नहीं हुए, और एक बड़ी आपके अंदर भी एक फ्रैक्चर्ड जो है वो सिचुएशन नजर आई, वकला बरादरी के अंदर भी वहां पे भी बड़ी फ्रैक्चर्ड जो है वो सिचुएशन नजर आई। तो आप समझते हैं कि इस दफा आप एहतजाज जो है वो कर सकेंगे और कोई मानी खेज एहतजाज जो है वो आप कर सकेंगे? जी बिल्कुल, बड़ी वजाहत के साथ हम बता दें। अब कभी यानी आप अंदाजा लगाएं, आपने तो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए क्या तीर मारा, एक साल में 3 केसेस किए सारे। वो एक टारगेट अचीव किया, वो टारगेट अचीव करने के बाद अगले टारगेट की तरफ चल गए हैं ना आप। यानी हम तो देखें ना, यहाँ बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्टिकल 184(3) खत्म किया जा रहा है। अगली बता दूं बात, यानी इन तरामीम के जरिए जो 26 आईनी तरमीम के जरिए जो पिटीशनें पड़ी हैं वो अबेट हो जाएंगी, यानी वो खत्म हो जाएंगी इसके बाद। यानी इसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के जितनी पिटीशनें हैं वो आपका आईनी बेंच कहेगा मैं तो सुन नहीं सकता, और आर्टिकल 184(3) रहा ही नहीं, अब रहा ही नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि जुल्म और ज्यादती की कोई हद होती है, और जिस दिन ट्रांसफर हुई थी 10 नवंबर को, उसी दिन उसका था कि सब एक पेज पे है, इतनी लंबी डेट क्यों डाली है, और फिर और 10 तारीख की आज मंडे की हियरिंग थी, वो क्यों लिस्ट कैंसिल की गई? यानी वो जी आपको जज नहीं अवेलेबल, या जितनी मर्जी बातें कर लें आप इस बात को सामने रखते हुए, वकला बरादरी इस हवाले से बड़ी क्लियर है। हमें देखिए, हमने ये कैसे हम कबूल कर लें कि आप सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान की 73-70 साल हिस्ट्री को एक आइन की प्रोविजन के तहत करके कहें कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कहेगी वो सीक्रेट है। इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि क्या पीटीआई और क्या वकला बरादरी, आप ये कह रहे हैं कि आप इसको चैलेंज करेंगे, इसके खिलाफ आप सड़कों पे भी निकलेंगे, और आप इसको जो है वो आपको कबूल नहीं है। तो क्या आपने कोई टाइम फ्रेम जो है वो डिजाइन किया है, या आप ये वेट कर रहे हैं कि एक दफा ये एक्सेप्ट हो उसके बाद जो है वो हम नहीं? देखिए, हमने पिटीशन पे काम करना शुरू कर दी है। हमारा नुक्ता नजर पहले बड़ा वाज़ेह है। पहली तो बात है, ये ड्राफ्ट 26वीं तरमीम की तरह छुपाया गया, सामने नहीं लाया गया। आपको ये सेनेट में पेश होता है ना, इसको ले जाएं अवाम के सामने, आप जाएं अवाम के सामने लेके जाए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, आप आइन साल असेंबली तो नहीं है, आप तो आइन ही तब्दील करने जा रही है ना। यानी आप आइन साल असेंबली तो नहीं थी, आप ये बेसिक स्ट्रक्चर अदलिया की आजादी की तबाह बर्बादी करें। आप लेके जाएं, लॉयर एसोसिएशन में आए, बार काउंसिल में आए, सिविल सोसाइटी देखे, पहले उनका इनपुट लें। जैसे 18वीं तरमीम ने 9 महीने लिए थे, आपको जल्दी किस बात की है? इस पे आराम से डेलिब्रेशन करें अगर आप करना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज अ वैलिड पॉइंट। लेट मी टेक दिस टू अली गौहर साहब एंड आस्क हिम कि अली गौहर साहब, चलें जहाँ तक ये बात है एहतजाज की बात, वो तो चलें टाइम आएगा तो देखेंगे। 26वीं तरमीम के टाइम पे भी इसी तरह की बातें हुई थी, बट वकला बरादरी अंदर से खुद ही जो है उनकी इतनी टूट फूट थी। हैविंग सेड दैट, ये जो अज़ीज़ साहब बात कर रहे हैं, ये इसमें कोई अनफेयर या कोई अनयूजुअल जो है वो डिमांड नहीं है कि अगर आप आईनी तरमीम करने जा रहे हैं तो मुसव्वदा जो है वो बार काउंसिल्स वो आवाम के सामने जो है वो रखा जाए। क्यों इतनी सीक्रेसी क्यों है? इस पर बड़ा जो है सवाल उठ रहा है, कितनी सीक्रेसी क्यों है? देखिए, जो भी आईनी प्रोसीजर है वो तो मतलब है हर तरह से पूरा मुकम्मल किया जाता है, और जो जिस तरह से कि उसको सेनेट में पेश करना, फिर कमेटीज में जाना, फिर उसके बाद उसके ऊपर बहस का होना, ये सारे वो फॉरम्स हैं जिनके ऊपर रखा जाएगा। और उससे पहले जाहिर है, अच्छा एक तो अदर साहब हवा में बड़ी छोड़ते हैं, ये इनका पुराना तरीकाकार है। वकला बरादरी की बात करते हैं, ये वकला क्या है? ये चंद लोगों का जत्था है। मतलब वकला बरादरी के भी आपने इलेक्शन देख नहीं लिए, किस बुरी तरह पिटे। इनसे पूछे, ये तो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हमारे अलावा है ही कोई नहीं, सारी जनाब 99% मकबूलियत ही हमारी है। मकबूलियत की कली खुल नहीं गई, आप वकला बरादरी में ही देख लें इनका, ठीक है ना। वकला भाई आप बात करने देना, अगर साहब बात करने देना यार। ब्रेक ये हवा में छोड़ना, ये हवा में आप नहीं छोड़ा, आप जितनी मर्जी आप इधर टॉक शोज में बैठकर हवा में छोड़ते हैं। जब आप ऑन ग्राउंड आपकी रियलिटी ये है कि वकला बरादरी ने आप पर अपने एतमाद का साहब जरा बात करने दीजिए, अली साहब को जरा बात करने दीजिए। जी जी, लेकिन यही इनका तरीकाकार है, चूंकि इनके पास आर्गू करने को तो बात कोई नहीं होती, सिर्फ अगला बंदा बात कर रहे है उसको बात ना करने दे, बस ये इनका तरीका वारदात है, और ये अगले की बारी में बोलते रहते हैं। देखिए, बात यह है कि वकला बरादरी ने 100% इन पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। अब आप ये कह सकते हैं कि वकला का जो चंद इनकी पार्टी के वकला है, जो छोटा सा जत्था है, उसके जरिए ये कहते हैं वकला बरादरी। भाई वकला बरादरी में वो लोग नहीं आते
जो इस वक्त मतलब है कि बाद के वो मेंबर मुंतखब हुए हैं, वो कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोगों ने इनके खिलाफ उधर वोट डाल दिया। इसी तरह से अब ये KPK में कहते हैं हमारी बड़ी मकबूलियत है, जिमनी इलेक्शन सारे आ रहे, इलेक्शन हारने के डर से इन्होंने बाईकाट कर दिया पंजाब के अंदर। ये जो बड़े तीर मार खान थे, इनको चाहिए था ना आकर मैदान में मुकाबला करते कि हम बाईकाट कर रहे हैं हर चीज का। एक तरफ अली साहब देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, इब्तिदाई में भी कहा कि अगर नंबर्स के एतबार से देखा जाए तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, बट कंसेंसस तो एक आईनी तरमीम हो रही है, उस पर कंसेंसस तो आपको चाहिए ना। और कंसेंसस मतलब खैर नहीं भी होगा तो उसके बाद भी पास तो हो जाएगी, बट अच्छा होगा अगर कंसेंसस से जो है वो पास हो। सिविल सोसाइटी शुड बी ऑन बोर्ड, लॉयर्स शुड बी ऑन बोर्ड। जैसे माजी में 9 महीने 18वीं तरमीम पे डिलिब्रेशंस हुई, तकरीबन 385 आवर्स जो हैं, ये कहा जाता है औसतन एक जो सेशन होता था 5-5 घंटे का सेशन होता था, तो एक हम आंगी जो है वहां पे नजर आई, एवरीवन वाज ऑन बोर्ड। क्या वजह है कि जो ये बात, इस पे बहुत ज्यादा जो है वो सवाल भी हो रहे हैं, इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि इसको बहुत जो है वो सीक्रेसी में जो है वो रखा जा रहा है। क्या वजह है कि इसको सामने नहीं लाया जा रहा? सामने बिल्कुल जिस फोरम पर सामने लाना है बिल्कुल लाया जा रहा है। जो आईनी तरीका है वो अगर नहीं अडॉप्ट किया जा रहा तो आप बताएं। अब अगर ये कहें कि जनाब इसको 18 महीने एक दफा अगर ज्यादा टाइम दिया गया है, तो आप ये कह दें कि हर तरमीम को भी किस आइन में लिखा है कि जनाब उसके इतने दिन। हाँ, अगर उसको सेनेट में पेश नहीं किया गया, अगर उसको कमेटीज में नहीं भेजा गया, अगर उस पर बहस नहीं कराई जाएगी, आप यही देख लेना सियासी तरीका ये होता है। आपने देखा पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई, उन्होंने कुछ चीजों पर तफादात का इजहार किया, उन चीजों को आपके सामने है कि फिलहाल उन चीजों को रोका गया। यही पॉलिटिकल तरीका होता है ना। ये तो नहीं आप कह सकते कि किसी चीज को बिल्डोज किया जा रहा है। तो फिर दायरे हुकूमत ने अगर ये आकर संजीदा हो बातचीत करने में, तो इनसे हम बात करने के लिए तैयार है। मैं आपके फोरम से इनको कह रहा हूँ, ये आए ना आकर बैठकर बात करें। ये तो हर जगह कहते हैं मुल्क जैम कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, हंगामा आराई करेंगे, वकला बरादरी ये कर देगी। भाई वकला बरादरी आपके साथ ही नहीं, आप किस वकला बरादरी की बात करते हैं? वो बरादरी नहीं है जो आपके अगेंस्ट कामयाब हुए लोग बार के अंदर ग्रुप। तो मकसद ये है कि इनको खुद अपना बिहेवियर पॉलिटिकल करना चाहिए। हर दूसरे सियासी लीडर को तो ये चोर और डाकू कहते हैं अपने अलावा, और वो एक अलग कहानी है कि इनकी तलाशी ली तो पता चला कहीं से अंगूठियां निकलती हैं, पता नहीं कहीं से क्या क्या। अलकादिर ट्रस्ट जैसे अरबों के करप्शन के स्कैंडल्स और केस सामने आ चुके हैं। तो इस तरह इनको अपना बिहेवियर पॉलिटिकल करें, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं इनके साथ। ये भी अपना रवैया सियासी जो है अपनाएं, अपने सियासी मुखालफीन को तस्लीम करें, अपने सियासी जो इनकी बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ, उसकी लीडरशिप के साथ ये बातचीत करने का तरीका सीखें। ये इंतशार पसंदी छोड़ें, ये एक सियासी पार्टी की तरह कंडक्ट करें। बिल्कुल रास्ते निकलते हैं। अगर आपका लीडर अगर जेल में बैठ के ये बात करेगा, मैं तो बात करूंगा तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ करूंगा। आप रोज उधर एक तरफ पूरी दुनिया आपके बयानिए को तस्लीम कर रही है, आपकी कामयाबियों को तस्लीम कर रही है, आप उसी जो है वो फील्ड मार्शल के खिलाफ ट्वीट्स करते हैं बैठकर। मैं इसको बिल्कुल बात को डिनाई नहीं करती। अगर आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखें, मार्का हक के बाद बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें पाकिस्तान के लिए हुई हैं, जिसका क्रेडिट जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को और फील्ड मार्शल साहब को जो है वो जाता है, नो डिनाइंग दैट। बट घर में अगर आपको अपने जो होम टर्फ है वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो वो भी तो ओनस हुकूमत पे है ना कि हुकूमत ने उसको जो है सॉर्ट आउट करना है। बिकॉज चाहे आप जितना मर्जी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो है आपकी सक्सेसेस हो जाएं, उनको अमलन जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए या उनसे मुस्तफीद होने के लिए अपने घर के अंदर भी जो है वो आपको चीज़ें सही चाहिए। अज़र सदीक साहब, लेकिन जहां हुकूमत को हम इस बात पे जो है वो तनकीद कर रहे हैं, क्या आप ये नहीं समझते कि आपका भी ये गलत फैसला था जो आपने कमेटी से जो है वो आपने रिजाइन कर दिया? तमाम कमेटी से आपको इस वक्त भी कहा गया नहीं करना चाहिए, आपकी एक नुमाइंदगी होनी चाहिए थी ताकि आप इन चीज़ों पे जो है वो अपना पर्सपेक्टिव दे सकें। माजी में भी 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे भी आपने एक JUIFA के तहत जो है उनके साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ऐड की जा रही थी और फिर आपने उनको वहाँ से जो है उनको अमेंड करवाया, उनको डिलीट करवाया। आपके पास ये भी एक मौका था जिसको आपने गवा दिया। नहीं, पहले बताते चले, बिल्कुल हमने ना कोई ऐड कराया ना हमने कोई डिलीट कराया। बिल्कुल गलत बात है ये जो कहा जा रहा है ना कि हम 26वीं तरमीम के साथ हम नहीं थे। हमारा 26वीं तरमीम में सिर्फ एक था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच
سینیورٹی کے مطابق بنا دیں, بڑا کلیئرٹی کا. مثال کے طور پر اگر ہم کمیٹیوں میں تھے بھی تو ہوا کیا؟ سوال ہے کہ 1.5 سال اسمبلیوں نے کیا گیا ہے. بتا دیں نا, کوئی کارکردگی بتا دیں ایسی کہ انہوں نے کوئی ملکی حالات میں کوئی بہتری کے لیے کوئی اچھی قانون سازی کی ہو, کوئی اچھا 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد تو صرف ایک تھا اور وہ انہوں نے اچیو کیا. یہ حقیقت ہے. تو انہوں نے اپنا بیسیکلی ریزرو سیٹیاں میں نہیں دینی تھی, انہوں نے وہ اچیو کیا. اپنی مرضی کے بینچ فکسنگ کا, بینچ بنانے کا, جوڈیشل کمیشن ایگزیکٹو کا, وہ سارا ٹارگٹ انہوں نے اچیو بیٹھ کر کیا. اب کوشچن یہ ہے کہ ہم یعنی ابھی بھی جو ہم بیٹھے ہیں نا, میرا اپنا 100% یہ یقین ہے اس حوالے سے, وہ صرف اپنے ان پٹ دیں گے کہ آپ نے جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ بیسک اسٹرکچر سے متصادم ہے ان ساری چیزوں کو, لیکن اس 27ویں ترمیم کو کسی طرح سے بھی پاس کرنے میں سوال ہی نہیں پیدا کہ ہم کوئی ہاتھ اپنا رکھیں گے. کیوں ہم یہ بیسک جو بنیادی طور پر یہ جو بیسک ڈاکومنٹ ہے کچھ 2000 پروویژن اچھی ہوگی جوڈیشل ایکٹیویزم کو سامنے رکھ کے. باقی اب مجھے بتائیں 3.5 سال میں بتا دیں آپ نے کوئی اکاؤنٹیبلٹیز گورنمنٹ سوائے کرپشن کا کیس کیا ہے؟ توشہ خانہ. کرپشن کا کیس توشہ خانہ سے شروع ہو کے توشہ خانہ تک ختم ہوتا ہے. 3.5 سال میں کوئی نہیں. پاکستان میں آخری نمبر پر ہے. آپ اکانومی ٹھیک نہیں کر سکے. آئین اور قانون کے نظام کو جو ہے آرٹیکل 175 کے ستیہ ناش کر دیا, پکڑ کے رکھے. اور جو اگلی جو بات آ رہی تھی, آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو جوڈیشری کی جو سپریمیسی ہے اس کو کسی طرح بھی ڈیمیج ہونا چاہیے, بٹ آپ جو بات کر رہے ہیں 184(3) کی, کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے لیے اس ملک میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا مس یوز ہوا ہے؟ ایم ناٹ سیئنگ کہ اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ اس کو رائٹ آف کر دینا چاہیے, لیکن آپ نہیں سمجھتے اس میں کچھ امینڈمنٹس تو ضرور ہونی چاہیے اس کی کوئی جو جی نہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, میں چونکہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں جتنا کام پاکستان میں نے کیا نا آج تک, جو نظام سیدھے ہوئے ہیں نا, یعنی نیپرا, پیپرا, اوگرا, ایس سی سی پی, فلپ سائڈ اس کی یہ ہے باتھ روم نئے صاف ہوئے تو اس پہ جو ہے وہ جو نوٹس لے لیا گیا. ایک بلڈنگ جو ہے لوگوں کی جمع پونجی جو ہے وہ ختم کر دی گئی, بلڈنگ کو ریز کر دیا گیا, کچھ آگے سے آلٹرنیٹیوز نہیں دیے گئے, لوگوں نے خودکشیاں کر لی, لوگوں کو جو ہے وہ دل کے دورے پڑ گئے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ایک فرد واحد کی وجہ سے. یہ بھی تو فلپ سائڈ ہے نا عزیز صدیق صاحب. بالکل فلپ سائڈ نہیں ہے, بالکل یہ فلپ سائڈ نہیں ہے. میری ایک بات سنیے گا, آپ ایک قبضے کے اوپر جا کر بیٹھ جائیں اور قبضے کے اوپر بیٹھ کر کہیں کہ آپ کو جائزے, یہ کوئی قانون نہیں اجازت دیتا. آرٹیکل 23 آپ کے فنڈامنٹل رائٹ اجازت نہیں دیتے. دیکھیں اچھا گزارش ہے صدیق صاحب, وہ تو خیر ایک اس میں جائیں گے تو ایک اس کی اپنی نٹی گریٹیز ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وہاں پہ جن لوگوں نے پیسے دیے وہ تو قبضے پہ نہیں بیٹھے نا. پھر تو آپ کو یو شوڈ ٹیک دا پروونشل گورنمنٹ ٹو ٹاسک اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, یا ان لوگوں کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو دینا چاہیے تھا. چلیں اس کو چھوڑ دیں, باتھ رومس پہ یہاں پہ تو جو ہے وہ سومو موٹوز ہو گئے کہ باتھ روم صاف نہیں تھے, مطلب یہ بھی ایک چیز ہے. نہیں میں دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو. مفت تعلیم کے لیے لکھا ہے نا آرٹیکل 25A میں, آپ کو پتہ دستیاب ہے ملک میں, رائٹ ٹو لائف کی بات ہے. آرٹیکل 19 کی بات ہے کہ جہاں فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے. کون سا فریڈم ہے یہاں پر؟ اب آرٹیکل 23-24 کی بات ہے کہ رائٹ ٹو پراپرٹی ہے. یعنی یہاں اگر یہ بات کریں نا, سر ود آل ڈیو ریسپیکٹ اف یو الاؤ می, آپ اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے 8 بجے کا پرائم ٹائم شو ہے اور آپ اپنا پرسپیکٹو دے رہے ہیں, یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے سر. دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہ آپ کا پروگرام ہے, میں آپ کو آج سے نہیں جانتا. اگر مجھے اسٹیٹ الاؤ نہ کرے, میں اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ بیٹھی ہوں, اگر منسٹر پرائم منسٹر یا جو بھی مجھے میری مینجمنٹ الاؤ نہ کرے تو آئی کانٹ کال یو اوور سر. تو یہ تو آپ کو فریڈم آف اسپیچ کی بات تو ہے. میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں, میں آپ کو وہ پروڈیوسر کے ثبوت دے سکتا ہوں کہ کئی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کے نہیں, اگر آپ کو نہیں بتانا, ہم نے پہلے میسج آیا, بعد میں انہوں نے معذرت کی. یہ آپ اس وقت نہیں, آپ نے دیکھا نہیں صحافیوں کے خلاف کیا کیا کچھ ہوا. آپ کے یہی سوال جو ہے وہ لے کے جاتی ہوں علی گوہر صاحب کی طرف. علی صاحب اگر آپ یہ آنسر کرنا چاہیں جو وہ بات کر رہے ہیں کہ اس 1.5 سال کے اندر کیا ہوا اور کیا چیزیں بہتر ہوئیں, اف یوڈ لائک ٹو آنسر. دیکھیں یہ بڑی وہ اس بات پہ ایسی آتی ہے, ان کا دور تھا تو ہمیں پی ٹی وی پر کوئی بلاتا نہیں تھا, اور میں نے وہ کوئی دوست تھے انہوں نے ایک پروگرام میں بلایا, اس کے بعد انہوں نے معذرت کر دی, انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آپ کے لیے منع کر دیا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے. دیکھیں وہ خیر وہ ہمیں وہ وقت سارے یاد ہیں, یہ بھاشن نہ دیں. جس وقت یہ اسمبلی میں قانون سازی کو بلڈوز کیا کرتے تھے, یقین کریں 8 منٹ کے اندر 48 سکوں کی قانون سازی ہو جاتی تھی. ایک سکے کے اوپر کتنی دیر بحث ہونی چاہیے قانونی طور پر. وہ گھر چھوڑے, ان کا کردار آپ کو پتہ ہے, یہ جو کچھ اپنے دور میں کرتے رہے.
1.5 साल में अपना भी लेजिस्लेशन का रिकॉर्ड निकाल लें, हमारा भी निकाल लें, अगला प्रोग्राम डालें। आप देखें पार्लियामान का काम कानून साजी करना है ना, पार्लियामान का बिजनेस ही कानून साजी करना है। और अगर उस पार्लियामान के अंदर आप सिर्फ गालम गलूच करेंगे, आप सिर्फ बजट की कापियां फाड़ेंगे, आप सिर्फ असेंबली में आके गोल गपाड़ा करेंगे, ये आपका काम नहीं है। आपका तो काम था कि आप अगर समझते हैं आपने अपोजिशन का किरदार अदा करना है, आप कहती हैं अपोजिशन लीडर इनका मतलब है वो बना दिया जाए, वो बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन बात ये है कि इनका काम क्या सिर्फ हंगामा है? इन्होंने वो पढ़ी है कि वो क्या लेजिस्लेशन ये को पढ़ते, ये तो कापियां फाड़ देते। ये अभी इजलास शुरू नहीं होता तो उधर गालम गलूच और नारेबाजी जाकर शुरू कर देते। नहीं, तो लेकिन अली साहब ये भी एक हकीकत है कि उस वक्त भी आपको याद है 4 से 5 ड्राफ्ट जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे थे। नहीं पता था 26वीं तरमीम के टाइम पे भी जो लोग जिनकी जो अब आपको याद है लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद ये कह रहे थे जी हमें तो पता नहीं है ड्राफ्ट कौन सा है। इस वक्त भी जो सीक्रेसी का एलिमेंट है इस पे सवाल ज़रूर हो रहा है कि क्या वजह है कि इसको जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो है अगर वो आम पब्लिक के लिए जो है जो उसमें अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसमें अमेंडमेंट्स अगर की जा रही हैं और उससे आम पब्लिक ने जो है मुस्तफीद होना जिस तरह हुकूमत कह रही है तो वो आम पब्लिक के सामने लाया जाए। जब वो हाउस के अंदर पेश हो जाएगा तो और उसके ऊपर मतलब है कि जब बहस शुरू हो जाएगी तो वो जाहिर है पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा, फिर वो पब्लिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा जो आईनी तरीका है। दूसरी गुजारिश ये है, दूसरी ये गुजारिश है अली साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। सिद्दीक साहब, अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब ये बताइए, आई गेट राइट टू इट, बहुत ज़्यादा जो है वो पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस आ रही थी लेकिन फिर उन्होंने जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया और अब ये स्टैंडिंग कमेटी दोनों हाउसेस की जो है उसमें गई हुई है, ये इस पर डिलिब्रेशन होनी है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम की जो कुछ चीज़ें जो अनरिजॉल्व रह गई थी जिनकी तरफ जो है वो फोकस नहीं था उस पे वाकई ही सीरियस है कि जी उनको एज लेवरेजिंग जो है वो इस्तेमाल कर रही है, या ये हुआ है कि हम इस पे आपके साथ आपको जो है सपोर्ट करेंगे लेकिन आगे जाके इन चीज़ों पे भी जो है वो गौर किया जाए, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो ट्वीट है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आपने मुझे बात करने का मौका दिया। देखिए गुजारिश ये है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहली ट्वीट आती है 27वीं तरमीम के हवाले से तो आपने देखा होगा कि उन्होंने तकरीबन वो तमाम नकात या क्लॉजेज जिन पे गुफ्तगू हुई थी उनका उन्होंने जिक्र किया अपनी ट्वीट में। लेकिन जब उससे बाद में डेलिब्रेशंस हुई तो उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन तमाम नकात के हवाले से तफसील से ब्रीफ किया गया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो 27वीं तरमीम में मुमकिन तौर पर लाई जा सकती हैं। उसके बाद जब उन्होंने अपनी जो उनकी CEC की मीटिंग थी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो तलब की जो 6 तारीख को हुई और 6 की शाम को उन्होंने हमारे पास वापस आके दोबारा वो डिस्कशन करनी थी, लेकिन उनकी वो मीटिंग जो है 2 दिन पे हुई थी। दूसरा सेशन उनका 7 तारीख को यानी कल हुआ और उसके बाद जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जो करिकुलम के हवाले से हमारा ये ख्याल था कि यकसा निसाब पूरे मुल्क में होना चाहिए, उस पर हमारी CEC में भी मुकम्मल इत्तेफाक नहीं पाया गया। उसके साथ साथ पॉपुलेशन के हवाले से हम ये चाह रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक मसला बन रहा है और वफाक इस पे अपना किरदार अदा करना चाह रहा था, लेकिन उस पे भी उन्होंने ये कहा कि अभी हमारा मुकम्मल इस पे इत्तेफाक राय नहीं हो सका, लिहाजा वो मसला भी अभी पेंडिंग है। फिर NFC के हवाले से हमारा ये प्रपोजल था कि चूंकि डेट सर्विसिंग एक ऐसी चीज है कि जो कर्जों की अदायगी सारी वफाक के ज़िम्मे है और एक बहुत बड़ी रकम इस सिलसिले में वफाक अदा करता है और हम सूबों से ये दरखास्त कर रहे थे और उस पर कंसेंसस पैदा कर रहे थे कि सूबे भी इसमें अपना हिस्सा बहुत कम लेकिन डालें। उस पर भी मामलात अभी फाइनल नहीं हो सके। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर के हवाले से कलामी की माफी, क्योंकि अगेन रिफरिंग टू बिलावल साहब ट्वीट, उस पे जिस तरह और जो उनकी पार्टी के दूसरे लोग भी जो बात कर रहे हैं NFC के हवाले से और जो सूबाई खुद मुख्तारी है
उस पे वो तो कम्प्लीटली कह रहे हैं कि जी हम इस पे बज नहीं करेंगे, इसको जो है वो हम इस पे कोई जो है हम अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे। क्या ये फाइनल है, उनकी हतमी पोजीशन है? जैसे अभी आप भी बात कर रहे हैं कि उस पर जो है अभी डिलिब्रेशन चल रही हैं, क्या वहाँ पे कोई लचक आज की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें कोई दिखाई गई, या अभी तक यही है कि दे विल नॉट बज फ्रॉम देयर डिमांड्स? पहले तो जो प्रोपेगेंडा 27वीं तरमीम के हवाले से किया गया कि 18वीं तरमीम को उसमें रोल बैक किया जा रहा है, मैंने पहले दिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात की थी कि ये बिल्कुल गलत, झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा है जो मीडिया पे किया जा रहा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। किसी तौर पे भी जो नकात और क्लॉजेज 18वीं तरमीम में शामिल थे उन्हें टच नहीं किया गया। एनएफसी के हवाले से मैं सिर्फ डेट सर्विसिंग की बात कर रहा हूँ कि कर्जों की अदायगी के हवाले से हम सूबों को ये कह रहे थे कि वफाक के साथ आपका भी ताउन होना चाहिए और बहुत एक मिनिमम परसेंटेज आप वफाक के साथ शेयर करें। इसमें अगर इत्तेफाक नहीं हो सका तो कोई बात नहीं। इसके साथ साथ दो चीजें और मैं आपको बता देता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए भी हम चाह रहे थे कि ऐसा एक तरीकाकार वजह हो कि जिस तरह इस वक्त एक डेडलॉक की कैफियत मौजूद है और इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की दो नाम अगर वो रिकमेंड करते हैं और उस पर डेडलॉक आता है, फिर वो पार्लिमानी कमेटी के पास बात जाती है और वहाँ पे भी फैसला नहीं हो पाता, तो हमारी ये तजवीज़ थी कि जुडिशल कमीशन के हवाले इस केस को भी कर दिया जाए। तो खैर ये वो 5 निकात थे जिन पर फैसला नहीं हो सका। ओवरसीज को भी हम चाह रहे थे कि वोटिंग इलेक्शन लड़ने का राइट दें और अगर वो वोट लेके जीत जाते हैं तो उसके बाद 6 महीने बाद वो अपनी फॉरेन नेशनलिटी को सरेंडर कर दें। ये वो सारी बातें हैं जो शायद बहुत जल्द 28वीं तरमीम की शक्ल में सामने आ जाएं, लेकिन इस पर बात जारी रहेगी। हमारी जितनी भी इत्तेहादी हैं उनके साथ मुशावरत जारी रहेगी। जो एमक्यूएम है उनका बहुत बड़ा क्योंकि अभी आपने ओवरसीज की बात की और नेशनलिटी की बात हो रही है, तो इवन वीज़ावी जो ये है कि जी जजेस हों या इसमें जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हों, वो जो ड्यूल नेशनल्स हैं वो रिनाउंस करेंगे अपनी जो फॉरेन नेशनलिटी है उसको। गालिबन इस पर भी पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं मान रही है। तो आपने उनसे कुछ पूछा? बिकॉज ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप पार्लियामेंटेरियंस पे भी जो है वो लागू होती है, तो क्या वजह है? क्योंकि जब इल्ज़ाम ही ये लगता है कि बहुत बुरी तरह जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें जो मुल्क में करप्शन है उसमें ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स का दोनों का हाथ है, तो जहां आप पर ये एक लागू होती है शेख कि जी आप लोग पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो रिनाउंस करें ताकि ये जो कहा जाता है जी बाहर ले गए, ये हो गया वो हो गया, वो ना कर सके, तो इस पे पीपल्स पार्टी की क्या रिजर्वेशन है? क्यों इस पे जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो अग्री नहीं कर रही? ये एक तजवीज़ थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने और बाकी इत्तेहादियों के सामने हमने रखी थी। बाकी इत्तेहादियों के इस पे बहुत ज़्यादा कोई एतराज़ात नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये तजवीज़ ले कि अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में गई तो वहाँ इस पे इत्तफाक राय नहीं पाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि इस पे हमारी सीईसी की मीटिंग में इत्तफाक राय नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से अभी हम इस काबिल नहीं है कि इस को हम सपोर्ट कर सकें। अब जाहिर है इसकी जो जुज़ियात हैं या जो तफसीलात हैं उस पर तो गुफ्तगू बाद में होगी, इसीलिए मैंने आपसे ये बात की है। मैं कोई आपको खबर नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपने अंदाजे की बुनियाद के ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि जब इन तमाम क्लॉजेज पे जो 5 मैंने आपके सामने गिनवाई हैं, अगर बाद में कोई इत्तफाक राय होता है, ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द 28वीं तरमीम आए और उसमें भी इनको पास कर दिया जाए। अच्छा, जो जजेस के तबादले का मामला है उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि जिस कोर्ट में जा रहे हों और जिस कोर्ट से जा रहे हों उनको दोनों को जो है वो ट्रांसफर कमीशन में जो है वो शामिल कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, एक कोई अनरीजनेबल डिमांड तो लग नहीं रही क्या इस पे जो है वो? क्योंकि आज हुकूमत में आप हैं, कल आपका कोई मुखालिफ जज, लेट्स सपोज साकिब निसार जैसा कॉम्प्रोमाइज जज कोई आ जाता है, तो कल को आप यूल बी ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द स्टिक। तो आप समझते नहीं है कि ये कोई एक अनरीजनेबल डिमांड नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? बिल्कुल अनरीजनेबल डिमांड नहीं है और बड़ी रीजनेबल डिमांड है। और आज जो कमेटी बनाई गई है, स्पेशल कमेटी चेयरमैन सेनेट साहब की तरफ से, उसमें ये डिमांड जो है ये रखी गई है और इंशाअल्लाह ताला इसको इनकॉर्पोरेट भी करेंगे। गवर्नमेंट को इस पर कोई एतराज नहीं होगा अगर दोनों जो हाई कोर्ट से उनके चीफ जस्टिस साहिबान जुडिशल कमीशन की इन प्रोसीडिंग्स में जिस पे एक जज साहब की ट्रांसफर की बात होगी, दोनों कंसर्न चीफ जस्टिस साहिबान अगर उस प्रोसीडिंग्स में मेंबर बनते हैं जुडिशल कमीशन के, तो गवर्नमेंट को उस पर कोई एतराज नहीं।
ठीक। अच्छा, टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस और आपका मनसब पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब थे और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है वो इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इस पे जो है वो कह रहे हैं कि जी हम एहतजाज की तरफ जाएंगे, वकला बिरादरी भी हमारे साथ होगी। दैट रिमेन्स टू बी सीन बिकॉज वकला बिरादरी तो ऑलरेडी बहुत फ्रैक्चर्ड जो है वो नज़र आ रही है। बट एक चीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट जो है शायद टेम्परेचर कुछ नीचे लाने में कोई मेरे ख्याल सक्सेसफुल हो सकती थी, वो जो नोटिफिकेशन है इनके जो लीडर्स ऑफ अपोजिशन हैं नेशनल असेंबली में और सेनेट में, ताकि कमेटीज़ जो हैं दोबारा रिज्यूम हो, कोई अपनी उनकी प्रेजेंस हो सारी, वो उसमें एक हुकूमत जो है वो एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकती थी, ब्रिंग द टेम्परेचर्स डाउन। क्या वजह है कि वो नहीं किया गया या उसमें डिले आ रहा है? देखिए, कौमी असेंबली हो या सेनेट हो, अपोजिशन ये चाह रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन उन लोगों को बनाया जाए जो अपनी पार्टी की सिंगल सीट रखते हैं। अच्छा, गई साहब जो हैं वो भी अपनी पार्टी के पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के सिंगल मेंबर हैं, दूसरा एमएनए इस पार्टी का असेंबली में नहीं है। इसी तरह जो नासिर अब्बास साहब हैं बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन सेनेट में उनकी वाइड सीट है, दूसरा कोई और सेनेटर उस जमात का नहीं है। ये दोनों ऐवानों में अनप्रेसिडेंटेड है, रवायात के बिल्कुल खिलाफ है कि एक ऐसे मेंबर को बना दिया जाए कि जो सिंगल मेंबर पार्टी हो। सर रवायात के खिलाफ है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इस सिलसिले में कोई ऐसी बात नहीं कहता। असेंबली के ये जो कवानीन हैं ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत चलते हैं, कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये रवायात होती हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं इस पे अपना कमेंट यहीं तक रखूंगा, ये स्पीकर की और चेयरमैन सेनेट साहब की जवाबदीद है। अपोजिशन को चाहिए कि उनसे रब्ता करे और इस मसले को इंशाल्लाह खुशअस्लूबी से तय कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी जिस तरह बात हो रही थी सिद्दीक साहब से, तो एक चीज़ जिसको वो जिस पे बहुत ज़्यादा शोर भी मच रहा है वो 184(3) वाला है, आर्टिकल 184 को रिपील करने की, जो उसको बिल्कुल ख़त्म करने की बात हो रही है। आई विल अग्री विद यू, इस मुल्क में, और उनसे भी ये बात कर रही थी, इस मुल्क में जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पे बहुत कुछ हुआ है, लोगों को बेघर कर दिया गया है। एक जुम्बिश कलम से घर लुट गए, लोगों की जो है वो लाइवलीहुड्स चले गए, बाथरूम्स पे यहाँ पे जो है वो लिया गया है। बट ये एक साइड है, दूसरी साइड ये है कि मफाद आमा और अवाम के मफाद के लिए इस आर्टिकल को जो है वो द आर्किटेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इसको डाला था। क्या इसको कम्प्लीटली जो है वो रिपील करना आपका ख्याल है ठीक चीज़ है, या इसमें जो है कुछ अमेंडमेंट्स हो सकती हैं जिसपे चेक्स एंड बैलेंसेस रखा जाए? 184(3) पे ऑलरेडी जो है वो किया गया है कि किस तरह जो है वो एक कमेटी होगी और उसके तहत जो है ये चीज़ें की जाएंगी। तो आपको नहीं लगता कि बिल्कुल इसको ख़त्म करना शायद कोई एक प्रूडेंट चीज़ ना हो? नहीं, देखिए, इसको रिवोक करने के हवाले से तजवीज़ जरूर मौजूद है, लेकिन चूंकि अभी स्पेशल कमेटी इस पे काम कर रही है तो मैं इस पे ज़्यादा रायज़नी नहीं करूँगा। ये उनका प्रेरोगेटिव है कि कमेटी के मेंबरान जो अक्सरीती जमातें सेनेट में और असेंबली में मौजूद हैं वो इस जॉइंट कमेटी में सेनेट के मेंबरान भी हैं, कौमी असेंबली के मेंबरान भी हैं, डेलिब्रेशंस कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि उनकी राय जो है वो मुकद्दम होगी और उसी के मुताबिक आगे प्रोसीड किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछला जब 26वीं तरमीम हुई थी तो जो JUI के मेंबर्स हैं जिसमें कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत पेश थे, आज उन्होंने और उनकी पार्टी से जो है आलिया कामरान साहिबा, उन्होंने वॉकआउट किया और उन्होंने कहा इसमें बहुत सारी चीज़ें वो ऐड की जा रही हैं जो हमने डिलीट कराई थी 26वीं तरमीम के टाइम पर, और उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। तो उनसे JUI फेस से कोई बातचीत इस वक्त चल रही है टू ब्रिंग देम बैक टू दिस डिलिब्रेशन प्रोसेस? उस पर अगर कुछ बताना चाहें। देखिए, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि जो अभी 3 मेन चीजें आई हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है, जजेस की ट्रांसफर है, आर्टिकल 243 है, इसमें कोई बात भी उस वक्त 26वीं तरमीम में डिस्कस नहीं हुई थी। लेकिन अगर आपने ताउन नहीं करना, आपने नहीं बैठना तो आपकी मर्जी है, वरना ये बिल्कुल नई चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है इसकी बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006 में की गई है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान वो साइन हुआ था लंदन में, उस वक्त का ये मामला चल रहा है। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इंसिस्ट कर रही है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो बाकी चीजें रह गई हैं उन पे भी अमल दरामद कराएं। ये कौन सी ऐसी बात है जो कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं जनाब कि ये पहले मैंने रुकवाई थी और मैंने नहीं रुकवाई थी? ये बातें जो हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। ये बात तो जो 2006 से चल रही है, और
आर्टिकल 243 क्या इस पे गौर फिक्र हो रही है? जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें थी जिसमें एटीसी कोर्ट्स का जिक्र था, नैब की अबॉलिशमेंट जो है उसका कहा गया था, बहुत सारी चीजें जो रिमेन अनफुलफिल्ड, द अनफुलफिल्ड एजेंडा ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उस पे कोई हो रहा है वैसे? मैं आपको नाम लेके तो नहीं अभी बताऊंगा कि किस बात के ऊपर क्या बात हो रही है, लेकिन जो चीजें डिस्कस हुई और फिलहाल ड्रॉप हुई हैं 27वीं तरमीम से वो भी बता दी हैं, जो पास हो रही हैं वो भी बता दी हैं। बाकी हमारी पूरी कोशिश है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या मौजूदा हालात में बाकी भी जो हमारे तादी हैं उनके ताउन से बल्दियाती निज़ाम को स्ट्रेंथन करने की बात हुई है, उसे फाइनेंशियल जो है वो ऑटोनॉमी देने की बात की गई है MKM की तरफ से। ये सारी बातें ज़ेरे बहस हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह 28वीं तरमीम की शक्ल में इन्हें रेक्टिफाई किया जाए। डॉक्टर साहब, फाइनल क्वेश्चन, जो ये एक बात की जा रही है, कल भी इसका सेशन है, संडे को भी सेशन जो है गालिबन 11 बजे रिज्यूम हो रहा है कल। हैविंग सेड दैट, इस पे बहुत ज़्यादा अगेन क्रिटिक हो रही है कि जी 15 से पहले पास करवानी है। इस पे अगर कुछ बोलना चाहें, बताना चाहें। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही बच्चेगाना स्टेटमेंट है जिसने भी दी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके हवाले से शिक हो, जजेस की ट्रांसफर हो, आर्टिकल 243 हो, ये इस वक्त लाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो नकात और जो क्लॉजेस जिन पे प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स थी वो अभी फिलहाल नहीं हो रही, वो भी सारी आपके सामने एक्सप्लेन कर दी गई हैं। जितना भी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम होता है वो प्रॉपर लिया जा रहा है। पहले पार्टियों से मुशावरत हुई है, फिर वो अपनी जमातों के पास गए हैं, उन्होंने अपनी CEC की मीटिंग्स की हैं, उसके बाद ये कैबिनेट में पास हुआ है, सेनेट में ले हुआ है, स्पेशल कमेटी के पास गया है, दोबारा सेनेट आएगा, यहाँ से पास होगा, फिर असेंबली जाएगा, वहाँ डिबेट होगा, वहाँ से पास होगा। तो ये प्रॉपर एक Right, due diligence according to you is being done. Dr. Saab, I'll have to interject there. Minister of Parliamentary Affairs Tariq Fazal Chaudhry साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। That's for the program for today. We will see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.